میں تمہیں ایک انویٹیشن دینا آئی ہوں. ہیلو راہم, کیسے ہو؟ گھر میں ایک چھوٹا سا گیٹ ٹوگیدر ہے اور زاویار کا عقیقہ ہے. خاص بات ہے. بہت خوش لگ رہی ہو آج. سب خیریت ہے؟ تم اور تمہاری فیملی دونوں انوائٹڈ ہیں, ضرور آنا. کنگریچولیشنز. عقیقہ رکھا ہے تمہیں پتا ہے میں تمہاری دل سے عزت کرتا ہوں. میں آؤں گا اور گھر والوں کو ساتھ لے کے آؤں گا. ماشاءاللہ یہ تو بہت اچھی بات ہے. بڑا اچھا لگا کہ تم نے عقیقہ پلان کیا ہے. اور تم ان میں سے ایک ہو جس نے مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا. اس خاص موقع پہ ہر وہ شخص میرے ساتھ ہو. تمہیں پتا ہے تم ایک بہت اچھی انسان, اسے تمہاری جیسی ماں ملی. زاویار بہت خوش نصیب ہے. یہ سب اللہ کا کرم ہے. میری تو زاویار کے لیے صرف یہی دعائیں ہیں کہ اللہ اسے صحت دے. شکر و زندگی کا جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی. عقیقہ ایک طریقے سے شکرانہ ہی تو ہے. اور تمہیں اس کی بہترین پرورش کرنے کی ہمت ہے. امی ابو نے میری مدد کی یہ فیصلہ لینے میں. لیکن تم نے یاد رکھا نا, مجھے بڑا اچھا لگا. لوگ اس طرح کی سنتوں کو اگنور کر دیتے ہیں. ابھی پھر میں جلدی سے کام کرتا ہوں. ہاں پھر کل ملاقات کرتے ہیں. اور یہ لیجیے امی آپ کی چائے. یہ لیجیے پھپھو چائے. لاؤ بیٹا, کوئی مہمان ہو جو اتنا کچھ منگا لیا, بس چائے بسکٹ بہت تھے. تھینک یو میرا بچہ. خوش ہو نا؟ تھینک یو پھپھو. بہت بہت مبارک ہو بیٹا. میں بہت خوش ہوں. ماشاء اللہ. کیا سوچا ہے شادی پہ کیا پہننا ہے؟ جوڑے کے بارے میں تم نے ابھی تک سوچا نہیں ہے کہ ہم کیسے لگیں گے, کیا پہنیں گے؟ پھپھو ابھی تک تو میں نے کچھ بھی نہیں سوچا. لڑکیوں کی تو راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے سوچ سوچ. ہمیں بتاتے ہوئے یہ شرما رہی ہے. سوچا تو ضرور ہوگا لیکن عجیب لڑکی ہو بھائی. اچھا چلو پھر ٹھیک ہے. زیور وغیرہ بنایا ہے یا ابھی خریدنا ہے؟ تو سونے کے ریٹ بھی آسمانوں سے باتیں کرتے ہیں. بس ایک ہی سیٹ لینا باقی ہے. 2 تولے کے 2 سیٹ تو پہلے ہی بنا کے رکھے ہوئے. مہنگائی تو واقعی بہت ہے ابھی. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. اتنا سستا ہوتا تھا سونا, اب تو پہلے بنا لیتی تو کتنی آسانی ہو جاتی. گزارا مشکل. سارا خرچ ہو جاتا ہے اور پھر مہنگائی دیکھ رہی ہیں آپ, کچھ بچتا ہی نہیں ہے مہینے کے آخر میں. اگر میں کر سکی تو ضرور کروں. کچھ ضرورت ہو تو مجھے ضرور بتانا. جو کر لیا وہ بہت ہے. اپنے ہی تو اپنوں کے کام آتے ہیں. آپ لوگ ہی تو میرے اپنے, آپ سے نہیں کہوں گی تو کسے کہوں گی. پلیز چائے پی لیں, دیکھیں ٹھنڈی ہو رہی ہے. ہاں ہاں ہاں, کیا چائے بنائی ہے بھائی. امی آپ کے لیے. چائے اور مجھے بسکٹ بھی دو ایک. دو نا. اچھی لگے گی تو اپنے میاں کے دل میں جگہ بنا پائے گی نا. میں دیکھ رہی ہوں تیرا وزن بڑھ گیا ہے. تو جو ہے نا تجھے 2 گھنٹے جاگنگ کرنی چاہیے. اماں یار کیا کروا رہی ہے تو مجھ سے؟ ایسا نہ ہو کہ شاویر اس کے پیچھے لگ جائے. تیری تو سوتن بھی گھر آ گئی. بیٹا یہ کرنا بہت ضروری ہے. میں ایسا کبھی ہونے نہیں دوں گی. میں بہت تھک گئی ہوں. اب میں کوئی چکر وکر نہیں لگا رہی. 2 چکر اور لگا لینا پھر گھر چلتے ہیں. سی جوس یہ بنا دے گی میرے لیے. یہ فبیا جو جوس پیتی ہے نا. چل اماں اب گھر چلتے ہیں یار. وہ سی نہیں ہے, وہ ABC ہے. ایک اور کام مت پکڑا مجھے, سمجھی؟ میں آلریڈی بہت تھک گئی ہوں. دیکھ میں گھر جاؤں گی, صرف آرام کروں گی. ہائے جو بھی ہے. اب ایسی منوز باتیں نہ کر تو میری عمر میں پہنچے گی تو معذور ہو جائے گی. بھری جوانی میں اس کی ہڈیاں جواب دے گئی ہیں. تجھے ایک کام بول دو منحوس تو کتنے کام کر لیتی تھی. اور میں تیری عمر میں تھی نا تو منہ بنا لیتی اور بے ہوش ہو جاتی ہے. تو چشمہ کیوں لگا رہی ہو؟ چپ کر, میں 2 چکر لگا کے آتی ہوں. چل ایسا کر, تو بیٹھ. انوکھی. کیسی طبیعت ہے آنٹی آپ کی؟ السلام علیکم. آپ نے کال کی, خیریت؟ ماما کی طبیعت کیسی ہے؟ ٹھیک ہوں بیٹا, تم بتاؤ تم کیسی ہو؟ چھوٹی سی ایک تقریب رکھی ہے, زاویار کا عقیقہ. ماما کی بھی طبیعت کافی بہتر ہے تو بہت اچھا ہو جائے گا. ماما کی طبیعت ان کا ساتھ ہی نہیں دیتی. تھوڑا سا وقت نکال کے تم آ جاؤ, ان کو بھی ساتھ لے آؤ نا. تنہائی سے بڑی تکلیف کوئی نہیں ہوتی. میں ماما سے پوچھ کر آپ کو بتاؤں گی. خوش ہو جائیں گی سب سے مل کے. اچھا ہے وہ ذرا باہر نکلیں گی, ان کا دل بہلے گا تو ان کو بہت بہتری محسوس ہوگی اپنی طبیعت میں. یہاں آ کے سب سے مل کے بیٹھیں گی. میں بھی یہی چاہتی ہوں آنٹی, لیکن اگر وہ نہیں بھی آئیں تو میں ضرور آؤں گی. میں آپ کے کہنے پہ ان سے پوچھ لوں گی. اللہ حافظ. آپ بھی اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ. چلو ٹھیک ہے, جیتے رہو میرا بچہ. یا اللہ رحم. تھوڑا وقت لگ جائے گا, آفس میں کچھ کام ہے. کب تک گھر واپس آؤ گی؟ ہمیں شاپنگ پر چلنا ہے اور تمہیں تو پتہ ہے ہمیں بہت ساری شاپنگ کرنی ہے. مارکیٹ بند ہو جائے گی. چلو کوشش کرو جلدی آ جاؤ. میں پوری کوشش کروں گی جلدی گھر آنے کی. زاویار کو بھی ساتھ لے لیں. نہیں
उसकी जरूरत नहीं है। मैं जैसे घर आऊंगी हम शॉपिंग पे चलेंगे। चलो फिर मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। साथ लेके जाएंगे तो बहुत तंग करेगा, वो अम्मी के पास ही रहेगा। खुदाफिज। चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। ड्रामा सीरियल मेरी बहुओं के न्यू एपिसोड में आप देखेंगे कि रहीम ऑफिस में बैठा हुआ होता है। ऊपर से ईमान आती है और उसे खुशखबरी सुनाती है कि तुम्हारा और मेरी बहन का रिश्ता पक्का होने वाला है, क्योंकि तुम्हारे वालिदैन और मेरे वालिदैन एक दूसरे से मुलाकात करना चाहते हैं और बात पक्की करना चाहते हैं। रहीम ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। ईमान से कहता है कि आपकी वजह से ये सब कुछ हुआ है, क्योंकि आप ना होती तो ये कभी भी ना होता। मुझे पता है कि मेरी बहन महक भी नहीं मान रही थी, लेकिन आपके वालिदैन का भी मुझे डर था कि शायद वो भी इनकार ना कर दे हमारी और तुम्हारी बहन की शादी से। तो इस तरह ईमान कहती है ऐसा कभी हो ही नहीं सकता था, क्योंकि मैं हूं ना। तो इस तरह ईमान वहां से चले जाती है और रहीम दोबारा से ऑफिस में काम करना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं आसिफ साहब की बीवी और ईमान के माँ आपस में बातें कर रहे होते हैं। वो इस टॉपिक पर बात कर रहे होते हैं कि किस तरह रहीम अच्छा लड़का है, हमें ये जिंदगी में बहुत ही एक मुतासर कुन लम्हात मिलने को नजर आ रहे हैं, क्योंकि हमने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि ऐसा अच्छा लड़का हमारी बेटी के लिए आएगा। तो यह बात सुनते ही ईमान की छोटी बहन बहुत मुस्कुराना और शर्माना शुरू कर देती है। इतने में आसिफ साहब की बीवी ईमान की छोटी बहन से पूछते हैं कि तुम्हें अपने शादी के लिए कोई जोड़ा पसंद आया है कि नहीं। तो वो कहती है मैंने तो अभी किसी तक सिलेक्ट ही नहीं किया। तो इतने में ईमान की माँ कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता, ये हमारे शर्मिंदगी से बता नहीं रही है, ये शर्म कर रही है। तो यही बात होती है। तो इतने में आसिफ साहब की बेबी ईमान की माँ से पूछती है कि आपने इसके लिए कोई दहेज वगैरह बनाया कि नहीं। तो वो कहती है हाँ बिल्कुल बनाया है, लेकिन अभी कुछ और करना पड़ेगा। एक तरफ हम देख रहे हैं कि महानूर और उसकी माँ पार्क में बैठे हुए होते हैं, वो कुछ ना कुछ चाल वगैरह चल रहे होते हैं, क्योंकि ईमान के यहाँ बेटा हुआ है। तो पहले उसकी बर्थडे थी, तो महानूर ने वहां पर बेहोश होकर सारी बर्थडे खराब कर दी। लेकिन अब शामिर जो है वो इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा है कि महानूर ने सारा बर्थडे खराब कर दिया। लेकिन अब ईमान के बेटे का हकीका है, तो शामिर ने उसे बिल्कुल ये वाज़ेह तौर पर सुना दिया कि अगर तुमने अब कोई चाल चली तो मैं तुमसे बुरा पेश आऊंगा। एक तरफ हम देख रहे हैं कि अलमीर की बीवी अपनी माँ के पास गई हुई है, क्योंकि उसे कैंसर है। तो आसिफ साहब की बीवी से कॉल करके कहेंगे कि तुम शायद आ सकती हो, तो तुम्हें चाहिए तो तुम आ जाओ, क्योंकि हम शामिर और मियान के बेटे की एक थोड़ी छोटा सा हकीका रख रहे हैं, तो तुम्हें चाहिए कि तुम इधर आ जाओ। लेकिन वो कहती है कि मेरी माँ की बिल्कुल तबीयत खराब है, वो बिल्कुल अपनी तबीयत से मुतासर नहीं हो रहे, क्योंकि उनसे तो चला भी नहीं जा रहा। तो आसिफ साहब की बीवी कहती है अल्लाह पाक खैर करेगा, तुम्हें चाहिए कि उन्हें इधर ले आओ, क्योंकि वो सारे खानदान और सारे लोगों को इधर देख कर थोड़ा सा तो खुश होंगे, उनकी तबीयत में कुछ ना कुछ नरमी तो आएगी। एक तरफ हम देख रहे हैं शामिर ईमान को कॉल करता है, क्योंकि ये लड़ाई के बाद पहली कॉल होती है तो ईमान कॉल उठा नहीं सकती, और लेकिन थोड़ी बाद उठाती है। तो शामिर कहता है हमने अपने बच्चे के लिए शॉपिंग के लिए जाना, तुम जल्दी आ जाना। तो ईमान कहती है मुझे लेट हो जाएगी, लेकिन ईमान कहती बाद में लेकिन मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगी, तुम परेशान मत होना, हम दोनों ही चले जाए। ड्रामा सीरियल मेरी बहुओं के न्यू एपिसोड में आप देखेंगे कि रहीम ऑफिस में बैठा हुआ होता है। ऊपर से ईमान आती है और उसे खुशखबरी सुनाती है कि तुम्हारा और मेरी बहन का रिश्ता पक्का होने वाला है, क्योंकि तुम्हारे वालिदैन और मेरे वालिदैन एक दूसरे से मुलाकात करना चाहते हैं और बात पक्की करना चाहते हैं। रहीम ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और ईमान से कहता है कि आपकी वजह से ये सब कुछ हुआ है, क्योंकि आप ना होती तो ये कभी भी ना होता। मुझे पता है कि मेरी बहन महक भी नहीं मान रही थी, लेकिन आपके वालिदैन का भी मुझे डर था कि शायद वो भी इनकार ना कर दे हमारी और तुम्हारी बहन की शादी से। तो इस तरह ईमान कहती है ऐसा कभी हो ही नहीं सकता था, क्योंकि मैं हूं ना। तो इस तरह ईमान वहां से चले जाती है और रहीम दोबारा से ऑफिस में काम करना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं आसिफ साहब की बीवी और ईमान के माँ आपस में बातें कर रहे होते हैं, वो इस टॉपिक पर बात कर रहे होते हैं कि किस तरह रहीम अच्छा लड़का है, हमें ये जिंदगी में बहुत ही एक मुतासर कुन लम्हात मिलने को नजर आ रहे हैं, क्योंकि हमने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि ऐसा अच्छा लड़का हमारी बेटी के लिए आएगा। तो यह बात सुनते ही ईमान की छोटी बहन बहुत मुस्कुराना और शर्माना शुरू कर देती है। इतने में आसिफ साहब की बीवी ईमान की छोटी बहन से पूछते हैं कि तुम्हें अपने शादी के लिए कोई जोड़ा पसंद आया है कि नहीं। तो वो कहती है मैंने तो अभी किसी तक सिलेक्ट ही नहीं किया। तो इतने में ईमान की माँ कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता, ये हमारे शर्मिंदगी से बता नहीं रही है, ये शर्म कर रही है।
तो यही बात होती है। तो इतने में आसिफ साहब की बीवी ईमान की माँ से पूछती है कि आपने इसके लिए कोई दहेज वगैरह बनाया कि नहीं, तो वो कहती हाँ बिल्कुल बनाया है, लेकिन अभी कुछ और करना पड़ेगा। एक तरफ हम देख रहे हैं कि महानूर और सीमा पार्क में बैठे हुए होते हैं, वो कुछ ना कुछ चाल वगैरह चल रहे होते हैं, क्योंकि ईमान के यहाँ बेटा हुआ है। तो पहले उसकी बर्थडे थी, तो महानूर ने वहां पर बेहोश होकर सारी बर्थडे खराब कर दी, लेकिन अब शामिर जो है वो इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा है कि महानूर ने सारा बर्थडे खराब कर दिया। लेकिन अब मान के बेटे का हकीका है, तो शामिर ने उसे बिल्कुल ये वाज़ह तौर पर सुना दिया कि अगर तुमने अब कोई चाल चली तो मैं तुमसे बुरा पेश आऊंगा। एक तरफ हम देख रहे हैं कि अलमीर की बीवी अपनी माँ के पास गई हुई है, क्योंकि उसे कैंसर है। तो अफसाब की बीवी से कॉल करके कहेंगे कि तुम शायद आ सकती हो, तो तुम्हें चाहिए तो तुम आ जाओ, क्योंकि हम शामिर और म्यान के बेटे की एक थोड़ी छोटा सा हकीका रख रहे हैं, तो तुम्हें चाहिए कि तुम इधर आ जाओ। लेकिन वो कहती है कि मेरी माँ की बिल्कुल तबीयत खराब है, वो बिल्कुल अपनी तबीयत से मुतासर नहीं हो रही, क्योंकि उनसे तो चला भी नहीं जा रहा। तो आसिफ साहब की बीवी कहती है अल्लाह पाक खैर करेगा, तुम्हें चाहिए कि उन्हें इधर ले आओ, क्योंकि वो सारे खानदान और सारे लोगों को इधर देख कर थोड़ा सा तो खुश होंगे, उनकी तबीयत में कुछ ना कुछ नरमी तो आएगी। एक तरफ हम देख रहे हैं शामिर ईमान को कॉल करता है, क्योंकि ये लड़ाई के बाद पहली कॉल होती है, तो ईमान कॉल उठा नहीं सकती, और लेकिन थोड़ी देर बाद उठाती है। तो शामिर कहता है हमने अपने बच्चे के लिए शॉपिंग के लिए जाना, तुम जल्दी आ जाना। तो ईमान कहती है मुझे लेट हो जाएगी, लेकिन ईमान कहती बाद में लेकिन मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगी, तुम परेशान मत होना, हम दोनों ही चले जाए। ड्रामा सीरियल मेरी बहुओं के न्यू एपिसोड में आप देखेंगे कि रहीम ऑफिस में बैठा हुआ होता है, ऊपर से ईमान आती है और उसे खुशखबरी सुनाती है कि तुम्हारा और मेरी बहन का रिश्ता पक्का होने वाला है, क्योंकि तुम्हारे वालिदैन और मेरे वालिदैन एक दूसरे से मुलाकात करना चाहते हैं और बात पक्की करना चाहते हैं। रहीम ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और ईमान से कहता है कि आपकी वजह से सब कुछ हुआ है, क्योंकि आप ना होती तो ये कभी भी ना होता। मुझे पता है कि मेरी बहन महक भी नहीं मान रही थी, लेकिन आपके वालिदैन का भी मुझे डर था कि शायद वो भी इनकार ना कर दे हमारी और तुम्हारी बहन की शादी से। तो इस तरह ईमान कहती है ऐसा कभी हो ही नहीं सकता था, क्योंकि मैं हूं ना। तो इस तरह ईमान वहां से चले जाती है और रहीम दोबारा से ऑफिस में काम करना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं आसिफ साहब की बीवी और ईमान के माँ आपस में बातें कर रहे होते हैं, वो इस टॉपिक पर बात कर रहे होते हैं कि किस तरह रहीम अच्छा लड़का है, हमें ये जिंदगी में बहुत ही एक मुतासर कुन लम्हात मिलने को नजर आ रहे हैं, क्योंकि हमने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि ऐसा अच्छा लड़का हमारी बेटी के लिए आएगा। तो ये बात सुनते ही ईमान की छोटी बहन बहुत मुस्कुराना और शर्माना शुरू कर देती है। इतने में आसिफ साहब की बीवी ईमान की छोटी बहन से पूछते हैं कि तुम्हें अपने शादी के लिए कोई जोड़ा पसंद आया है कि नहीं। तो वो कहती है मैंने तो अभी किसी सिलेक्ट ही नहीं किया। तो इतने में ईमान की माँ कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता, ये हमारे शर्मिंदगी से बता नहीं रही है, ये शर्म कर रही है। तो यही बात होती है। तो इतने में आसिफ साहब की बीवी ईमान की माँ से पूछती है कि आपने इसके लिए कोई दहेज वगैरह बनाया कि नहीं। तो वो कहती है हाँ बिल्कुल बनाया है, लेकिन अभी कुछ और करना पड़ेगा। एक तरफ हम देख रहे हैं कि महानूर और सीमा पार्क में बैठे हुए होते हैं, वो कुछ ना कुछ चाल वगैरह चल रहे होते हैं, क्योंकि ईमान के यहाँ बेटा हुआ है। तो पहले उसकी बर्थडे थी, तो महानूर ने वहां पर बेहोश होकर सारी बर्थडे खराब कर दी, लेकिन अब शामिर जो है वो इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा है कि महानूर ने सारा बर्थडे खराब कर दिया। लेकिन अब ईमान के बेटे का हकीका है, तो शामिर ने उसे बिल्कुल ये वाज़ह तौर पर सुना दिया कि अगर तुमने अब कोई चाल चली तो मैं तुमसे बुरा पेश आऊंगा। एक तरफ हम देख रहे हैं कि अलमीर की बीवी अपनी माँ के पास गई हुई है, क्योंकि उसे कैंसर है। तो अफसाब की बीवी से कॉल करके कहेंगे कि तुम शायद आ सकती हो, तो तुम्हें चाहिए तो तुम आ जाओ, क्योंकि हम शामिर और म्यान के बेटे की एक थोड़ी छोटा सा हकीका रख रहे हैं, तो तुम्हें चाहिए कि तुम इधर आ जाओ। लेकिन वो कहती है कि मेरी माँ की बिल्कुल तबीयत खराब है, वो बिल्कुल अपनी तबीयत से मुतासर नहीं हो रही, क्योंकि उनसे तो चला भी नहीं जा रहा। तो आसिफ साहब की बीवी कहती है अल्लाह पाक खैर करेगा, तुम्हें चाहिए कि उन्हें इधर ले आओ, क्योंकि वो सारे खानदान और सारे लोगों को इधर देख कर थोड़ा सा तो खुश होंगे, उनकी तबीयत में कुछ ना कुछ नरमी तो आएगी। एक तरफ हम देख रहे हैं शामिर ईमान को कॉल करता है, क्योंकि ये लड़ाई के बाद पहली कॉल होती है, तो ईमान कॉल उठा नहीं सकती, और लेकिन थोड़ी देर बाद उठाती है। तो शामिर कहता है हमने अपने बच्चे के लिए शॉपिंग के लिए जाना, तुम जल्दी आ जाना। तो ईमान कहती है मुझे लेट हो जाएगी, लेकिन ईमान कहती बाद में लेकिन मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगी, तुम परेशान मत होना, हम दोनों ही चले जाए। ड्रामा सीरियल मेरी बहुओं के न्यू एपिसोड में आप देखेंगे कि रहीम ऑफिस में बैठा हुआ होता है, ऊपर से ईमान आती है और उसे खुशखबरी सुनाती है कि तुम्हारा और मेरी बहन का रिश्ता पक्का होने वाला है, क्योंकि तुम्हारे वालिदैन
वालिदैन और मेरे वालिदैन एक दूसरे से मुलाकात करना चाहते हैं और बात पक्की करना चाहते हैं। रहीम ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। रुमान से कहता है कि आपकी वजह से ये सब कुछ हुआ है, क्योंकि आप ना होती तो ये कभी भी ना होता। मुझे पता है कि मेरी बहन महक भी नहीं मान रही थी, लेकिन आपके वालिदैन का भी मुझे डर था कि शायद वो भी इनकार ना कर दे हमारी और तुम्हारी बहन की शादी से। तो इस तरह ईमान कहती है ऐसा कभी हो ही नहीं सकता था, क्योंकि मैं हूं ना। तो इस तरह ईमान वहां से चले जाती है और रहीम दोबारा से ऑफिस में काम करना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं आसिफ साहब की बीवी और ईमान के माँ आपस में बातें कर रहे होते हैं। वो इस टॉपिक पर बात कर रहे होते हैं कि किस तरह रहीम अच्छा लड़का है, हमें ये जिंदगी में बहुत ही एक मुतासर कुन लम्हात मिलने को नजर आ रहे हैं, क्योंकि हमने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि ऐसा अच्छा लड़का हमारी बेटी के लिए आएगा। तो ये बात सुनते ही ईमान की छोटी बहन बहुत मुस्कुराना और शर्माना शुरू कर देती है। इतने में आसिफ साहब की बीवी ईमान की छोटी बहन से पूछते हैं कि तुम्हें अपने शादी के लिए कोई जोड़ा पसंद आया है कि नहीं। तो वो कहती है मैंने तो अभी किसी तक सिलेक्ट ही नहीं किया। तो इतने में ईमान की माँ कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता, ये हमारे शर्मिंदगी से बता नहीं रही है, ये शर्म कर रही है। तो यही बात होती है। तो इतने में आसिफ साहब की बीवी ईमान की माँ से पूछती है कि आपने इसके लिए कोई दहेज वगैरह बनाया कि नहीं। तो वो कहती है हाँ बिल्कुल बनाया है, लेकिन अभी कुछ और करना पड़ेगा। एक तरफ हम देख रहे हैं कि महानूर और सीमा पार्क में बैठे हुए होते हैं, वो कुछ ना कुछ चाल वगैरह चल रहे होते हैं, क्योंकि ईमान के यहाँ बेटा हुआ है। तो पहले उसकी बर्थडे थी तो महानूर ने वहां पर बेहोश होकर सारी बर्थडे खराब कर दी, लेकिन अब शामिर जो है वो इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा है कि महानूर ने सारा बर्थडे खराब कर दिया। लेकिन अब ईमान के बेटे का हकीका है तो शामिर ने उसे बिल्कुल ये वाज़ेह तौर पर सुना दिया कि अगर तुमने अब कोई चाल चली तो मैं तुमसे बुरा पेश आऊंगा। एक तरफ हम देख रहे हैं कि अलमीर की बीवी अपनी माँ के पास गई हुई है, क्योंकि उसे कैंसर है। तो अफसाब की बीवी से कॉल करके कहेंगे कि तुम शायद आ सकती हो, तो तुम्हें चाहिए तो तुम आ जाओ, क्योंकि हम शामिर और म्यान के बेटे की एक थोड़ी छोटा सा हकीका रख रहे हैं, तो तुम्हें चाहिए कि तुम इधर आ जाओ। लेकिन वो कहती है कि मेरी माँ की बिल्कुल तबीयत खराब है, वो बिल्कुल अपनी तबीयत से मुतासर नहीं हो रही, क्योंकि उनसे तो चला भी नहीं जा रहा। तो आसिफ साहब की बीवी कहती है अल्लाह पाक खैर करेगा, तुम्हें चाहिए कि उन्हें इधर ले आओ, क्योंकि वो सारे खानदान और सारे लोगों को इधर देख कर थोड़ा सा तो खुश होंगे, उनकी तबीयत में कुछ ना कुछ नरमी तो आएगी। एक तरफ हम देख रहे हैं शामिर ईमान को कॉल करता है, क्योंकि ये लड़ाई के बाद पहली कॉल होती है तो ईमान ही कॉल उठा नहीं सकती, और लेकिन थोड़ी देर बाद उठाती है। तो शामिर कहता है हमने अपने बच्चे के लिए शॉपिंग के लिए जाना, तुम जल्दी आ जाना। तो ईमान कहती है मुझे लेट हो जाएगी, लेकिन ईमान कहती बाद में लेकिन मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगी, तुम परेशान मत होना, हम दोनों ही चले जाए। ड्रामा सीरियल मेरी बहुओं के न्यू एपिसोड में आप देखेंगे कि रहीम ऑफिस में बैठा हुआ होता है, ऊपर से ईमान आती है और उसे खुशखबरी सुनाती है कि तुम्हारा और मेरी बहन का रिश्ता पक्का होने वाला है, क्योंकि तुम्हारे वालिदैन और मेरे वालिदैन एक दूसरे से मुलाकात करना चाहते हैं और बात पक्की करना चाहते हैं। रहीम ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। ईमान से कहता है कि आपकी वजह से ये सब कुछ हुआ है, क्योंकि आप ना होती तो ये कभी भी ना होता। मुझे पता है कि मेरी बहन महक भी नहीं मान रही थी, लेकिन आपके वालिदैन का भी मुझे डर था कि शायद वो भी इनकार ना कर दे हमारी और तुम्हारी बहन की शादी से। तो इस तरह ईमान कहती है ऐसा कभी हो ही नहीं सकता था, क्योंकि मैं हूं ना। तो इस तरह ईमान वहां से चले जाती है और रहीम दोबारा से ऑफिस में काम करना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं आसिफ साहब की बीवी और ईमान के माँ आपस में बातें कर रहे होते हैं, वो इस टॉपिक पर बात कर रहे होते हैं कि किस तरह रहीम अच्छा लड़का है, हमें ये जिंदगी में बहुत ही एक मुतासर कुन लम्हात मिलने को नजर आ रहे हैं, क्योंकि हमने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि ऐसा अच्छा लड़का हमारी बेटी के लिए आएगा। तो ये बात सुनते ही ईमान की छोटी बहन बहुत मुस्कुराना और शर्माना शुरू कर देती है। इतने में आसिफ साहब की बीवी ईमान की छोटी बहन से पूछते हैं कि तुम्हें अपने शादी के लिए कोई जोड़ा पसंद आया है कि नहीं। तो वो कहती है मैंने तो अभी किसी तक सिलेक्ट ही नहीं किया। तो इतने में ईमान की माँ कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता, ये हमारे शर्मिंदगी से बता नहीं रही है, ये शर्म कर रही है। तो यही बात होती है। तो इतने में आसिफ साहब की बीवी ईमान की माँ से पूछती है कि आपने इसके लिए कोई दहेज वगैरह बनाया कि नहीं। तो वो कहती है हाँ बिल्कुल बनाया है, लेकिन अभी कुछ और करना पड़ेगा। एक तरफ हम देख रहे हैं कि महानूर और सीमा पार्क में बैठे हुए होते हैं, वो कुछ ना कुछ चाल वगैरह चल रहे होते हैं, क्योंकि ईमान के यहाँ बेटा हुआ है। तो पहले उसकी बर्थडे थी तो महानूर ने वहां पर बेहोश होकर सारी बर्थडे खराब कर दी, लेकिन अब शामिर जो है वो इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा है कि महानूर ने सारा बर्थडे खराब कर दिया। लेकिन अब ईमान के बेटे का हकीका है तो शामिर ने उसे बिल्कुल ये वाज़ेह तौर पर सुना दिया कि अगर तुमने अब कोई चाल चली तो मैं तुमसे बुरा पेश आऊंगा। एक तरफ हम देख रहे हैं कि अलमीर की बीवी अपनी माँ के पास गई हुई है, क्योंकि उसे कैंसर है। तो अफसाब की बीवी से कॉल करके कहेंगे कि तुम शायद आ सकती हो,
तो तुम्हें चाहिए तो तुम आ जाओ, क्योंकि हम शामिर और म्यान के बेटे की एक थोड़ी छोटा सा हकीका रख रहे हैं, तो तुम्हें चाहिए कि तुम इधर आ जाओ। लेकिन वो कहती है कि मेरी माँ की बिल्कुल तबीयत ख़राब है, वो बिल्कुल अपनी तबीयत से मुतासर नहीं हो रही, क्योंकि उनसे तो चला भी नहीं जा रहा। तो आसिफ साहब की बीवी कहती है अल्लाह पाक खैर करेगा, तुम्हें चाहिए कि उन्हें इधर ले आओ, क्योंकि वो सारे ख़ानदान और सारे लोगों को इधर देख कर थोड़ा सा तो खुश होंगे, उनकी तबीयत में कुछ ना कुछ नरमी तो आएगी। एक तरफ हम देख रहे हैं शामिर ईमान को कॉल करता है, क्योंकि ये लड़ाई के बाद पहली कॉल होती है तो ईमान ही कॉल उठा नहीं सकती, और लेकिन थोड़ी देर बाद उठाती है तो शामिर कहता है हमने अपने बच्चे के लिए शॉपिंग के लिए जाना, तुम जल्दी आ जाना। तो ईमान कहती है मुझे लेट हो जाएगी, लेकिन ईमान कहती बाद में लेकिन मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगी, तुम परेशान मत होना, हम दोनों ही चले जाए। ड्रामा सीरियल मेरी बहुओं के न्यू एपिसोड में आप देखेंगे कि रहीम ऑफिस में बैठा हुआ होता है, ऊपर से ईमान आती है और उसे खुशखबरी सुनाती है कि तुम्हारा और मेरी बहन का रिश्ता पक्का होने वाला है, क्योंकि तुम्हारे वालिदैन और मेरे वालिदैन एक दूसरे से मुलाकात करना चाहते हैं और बात पक्की करना चाहते हैं। रहीम ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, ईमान से कहता है कि आपकी वजह से ये सब कुछ हुआ है, क्योंकि आप ना होती तो ये कभी भी ना होता। मुझे पता है कि मेरी बहन महक भी नहीं मान रही थी, लेकिन आपके वालिदैन का भी मुझे डर था कि शायद वो भी इनकार ना कर दे हमारी और तुम्हारी बहन की शादी से। तो इस तरह ईमान कहती है ऐसा कभी हो ही नहीं सकता था, क्योंकि मैं हूं ना। तो इस तरह ईमान वहां से चले जाती है और रहीम दोबारा से ऑफिस में काम करना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं आसिफ साहब की बीवी और ईमान के माँ आपस में बातें कर रहे होते हैं, वो इस टॉपिक पर बात कर रहे होते हैं कि किस तरह रहीम अच्छा लड़का है, हमें ये जिंदगी में बहुत ही एक मुतासर कुन लम्हात मिलने को नजर आ रहे हैं, क्योंकि हमने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि ऐसा अच्छा लड़का हमारी बेटी के लिए आएगा। तो यह बात सुनते ही ईमान की छोटी बहन बहुत मुस्कुराना और शर्माना शुरू कर देती है। इतने में आसिफ साहब की बीवी ईमान की छोटी बहन से पूछते हैं कि तुम्हें अपने शादी के लिए कोई जोड़ा पसंद आया है कि नहीं। तो वो कहती है मैंने तो अभी किसी तक सिलेक्ट ही नहीं किया। तो इतने में ईमान की माँ कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता, ये हमारे शर्मिंदगी से बता नहीं रही है, ये शर्म कर रही है। तो यही बात होती है। तो इतने में आसिफ साहब की बीवी ईमान की माँ से पूछती है कि आपने इसके लिए कोई दहेज वगैरह बनाया कि नहीं। तो वो कहती है हाँ बिल्कुल बनाया है, लेकिन अभी कुछ और करना पड़ेगा। एक तरफ हम देख रहे हैं कि महानूर और उसकी माँ पार्क में बैठे हुए होते हैं, वो कुछ ना कुछ चाल वगैरह चल रहे होते हैं, क्योंकि ईमान के यहाँ बेटा हुआ है। तो पहले उसकी बर्थडे थी तो महानूर ने वहां पर बेहोश होकर सारी बर्थडे खराब कर दी, लेकिन अब शामिर जो है वो इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा है कि महानूर ने सारा बर्थडे खराब कर दिया। लेकिन अब ईमान के बेटे का हकीका है, तो शामिर ने उसे बिल्कुल ये वाज़ह तौर पर सुना दिया कि अगर तुमने अब कोई चाल चली तो मैं तुमसे बुरा पेश आऊंगा। एक तरफ हम देख रहे हैं कि अलमीर की बीवी अपनी माँ के पास गई हुई है, क्योंकि उसे कैंसर है। तो आसिफ साहब की बीवी से कॉल करके कहेंगे कि तुम शायद आ सकती हो, तो तुम्हें चाहिए तो तुम आ जाओ, क्योंकि हम शामिर और म्यान के बेटे की एक थोड़ी छोटा सा हकीका रख रहे हैं, तो तुम्हें चाहिए कि तुम इधर आ जाओ। लेकिन वो कहती है कि मेरी माँ की बिल्कुल तबीयत ख़राब है, वो बिल्कुल अपनी तबीयत से मुतासर नहीं हो रही, क्योंकि उनसे तो चला भी नहीं जा रहा। तो आसिफ साहब की बीवी कहती है अल्लाह पाक खैर करेगा, तुम्हें चाहिए कि उन्हें इधर ले आओ, क्योंकि वो सारे ख़ानदान और सारे लोगों को इधर देख कर थोड़ा सा तो खुश होंगे, उनकी तबीयत में कुछ ना कुछ नरमी तो आएगी। एक तरफ हम देख रहे हैं शामिर ईमान को कॉल करता है, क्योंकि ये लड़ाई के बाद पहली कॉल होती है तो ईमान ही कॉल उठा नहीं सकती, और लेकिन थोड़ी देर बाद उठाती है। तो शामिर कहता है हमने अपने बच्चे के लिए शॉपिंग के लिए जाना, तुम जल्दी आ जाना। तो ईमान कहती है मुझे लेट हो जाएगी, लेकिन ईमान कहती बाद में लेकिन मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगी, तुम परेशान मत होना, हम दोनों ही चले जाए। ड्रामा सीरियल मेरी बहुओं के न्यू एपिसोड में आप देखेंगे कि रहीम ऑफिस में बैठा हुआ होता है, ऊपर से ईमान आती है और उसे खुशखबरी सुनाती है कि तुम्हारा और मेरी बहन का रिश्ता पक्का होने वाला है, क्योंकि तुम्हारे वालिदैन और मेरे वालिदैन एक दूसरे से मुलाकात करना चाहते हैं और बात पक्की करना चाहते हैं। रहीम ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, ईमान से कहता है कि आपकी वजह से ये सब कुछ हुआ है, क्योंकि आप ना होती तो ये कभी भी ना होता। मुझे पता है कि मेरी बहन महक भी नहीं मान रही थी, लेकिन आपके वालिदैन का भी मुझे डर था कि शायद वो भी इनकार ना कर दे हमारी और तुम्हारी बहन की शादी से। तो इस तरह ईमान कहती है ऐसा कभी हो ही नहीं सकता था, क्योंकि मैं हूं ना। तो इस तरह ईमान वहां से चले जाती है और रहीम दोबारा से ऑफिस में काम करना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं आसिफ साहब की बीवी और ईमान के माँ आपस में बातें कर रहे होते हैं, वो इस टॉपिक पर बात कर रहे होते हैं कि किस तरह रहीम अच्छा लड़का है, हमें ये जिंदगी में बहुत ही एक मुतासर कुन लम्हात मिलने को नजर आ रहे हैं, क्योंकि हमने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि ऐसा अच्छा लड़का हमारी बेटी के लिए आएगा।
तो ये बात सुनते ही ईमान की छोटी बहन बहुत मुस्कुराना और शर्माना शुरू कर देती है। इतने में आसिफ साहब की बीवी ईमान की छोटी बहन से पूछते हैं कि तुम्हें अपने शादी के लिए कोई जोड़ा पसंद आया है कि नहीं। तो वो कहती है मैंने तो अभी किसी तक सिलेक्ट ही नहीं किया। तो इतने में ईमान की माँ कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता, ये हमारे शर्मिंदगी से बता नहीं रही है, ये शर्म कर रही है। तो यही बात होती है। तो इतने में आसिफ साहब की बीवी ईमान की माँ से पूछती है कि आपने इसके लिए कोई दहेज वगैरह बनाया है कि नहीं। तो वो कहती है हाँ बिल्कुल बनाया है, लेकिन अभी कुछ और करना पड़ेगा। एक तरफ हम देख रहे हैं कि महानूर और उसकी माँ पार्क में बैठे हुए होते हैं, वो कुछ ना कुछ चाल वगैरह चल रहे होते हैं, क्योंकि ईमान के यहाँ बेटा हुआ है। तो पहले उसकी बर्थडे थी तो महानूर ने वहां पर बेहोश होकर सारी बर्थडे खराब कर दी, लेकिन अब शामिर जो है वो इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा है कि महानूर ने सारा बर्थडे खराब कर दिया। लेकिन अब ईमान के बेटे का हकीका है तो शामिर ने उसे बिल्कुल ये वाज़ह तौर पर सुना दिया कि अगर तुमने अब कोई चाल चली तो मैं तुमसे बुरा पेश आऊंगा। एक तरफ हम देख रहे हैं कि अलमीर की बीवी अपनी माँ के पास गई हुई है क्योंकि उसे कैंसर है। तो अफसाब की बीवी से कॉल करके कहेंगे कि तुम शायद आ सकती हो, तो तुम्हें चाहिए तो तुम आ जाओ, क्योंकि हम शामिर और म्यान के बेटे की एक थोड़ी छोटा सा हकीका रख रहे हैं, तो तुम्हें चाहिए कि तुम इधर आ जाओ। लेकिन वो कहती है कि मेरी माँ की बिल्कुल तबीयत खराब है, वो बिल्कुल अपनी तबीयत से मुतासर नहीं हो रही क्योंकि उनसे तो चला भी नहीं जा रहा। तो आसिफ साहब की बीवी कहती है अल्लाह पाक खैर करेगा, तुम्हें चाहिए कि उन्हें इधर ले आओ, क्योंकि वो सारे खानदान और सारे लोगों को इधर देख कर थोड़ा सा तो खुश होंगे, उनकी तबीयत में कुछ ना कुछ नरमी तो आएगी। एक तरफ हम देख रहे हैं शामिर ईमान को कॉल करता है, क्योंकि ये लड़ाई के बाद पहली कॉल होती है तो ईमान कॉल उठा नहीं सकती, और लेकिन थोड़ी बार उठाती है। तो शामिर कहता है हमने अपने बच्चे के लिए शॉपिंग के लिए जाना, तुम जल्दी आ जाना। तो ईमान कहती है मुझे लेट हो जाएगी, लेकिन ईमान कहती बाद में लेकिन मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगी, तुम परेशान मत होना, हम दोनों ही चले जाए। ड्रामा सीरियल मेरी बहुओं के न्यू एपिसोड में आप देखेंगे कि रहीम ऑफिस में बैठा हुआ होता है, ऊपर से ईमान आती है और उसे खुशखबरी सुनाती है कि तुम्हारा और मेरी बहन का रिश्ता पक्का होने वाला है, क्योंकि तुम्हारे वालिदैन और मेरे वालिदैन एक दूसरे से मुलाकात करना चाहते हैं और बात पक्की करना चाहते हैं। रहीम ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, ईमान से कहता है कि आपकी वजह से ये सब कुछ हुआ है, क्योंकि आप ना होती तो ये कभी भी ना होता। मुझे पता है कि मेरी बहन महक भी नहीं मान रही थी, लेकिन आपके वालिदैन का भी मुझे डर था कि शायद वो भी इनकार ना कर दे हमारी और तुम्हारी बहन की शादी से। तो इस तरह ईमान कहती है ऐसा कभी हो ही नहीं सकता था, क्योंकि मैं हूं ना। तो इस तरह ईमान वहां से चले जाती है और रहीम दोबारा से ऑफिस में काम करना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं आसिफ साहब की बीवी और ईमान के माँ आपस में बातें कर रहे होते हैं, वो इस टॉपिक पर बात कर रहे होते हैं कि किस तरह रहीम अच्छा लड़का है, हमें ये जिंदगी में बहुत ही एक मुतासर कुन लम्हात मिलने को नजर आ रहे हैं, क्योंकि हमने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि ऐसा अच्छा लड़का हमारी बेटी के लिए आएगा। तो यह बात सुनते ही ईमान की छोटी बहन बहुत मुस्कुराना और शर्माना शुरू कर देती है। इतने में आसिफ साहब की बीवी ईमान की छोटी बहन से पूछते हैं कि तुम्हें अपने शादी के लिए कोई जोड़ा पसंद आया है कि नहीं। तो वो कहती है मैंने तो अभी किसी तक सिलेक्ट ही नहीं किया। तो इतने में ईमान की माँ कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता, ये हमारे शर्मिंदगी से बता नहीं रही है, ये शर्म कर रही है। तो यही बात होती है। तो इतने में आसिफ साहब की बीवी ईमान की माँ से पूछती है कि आपने इसके लिए कोई दहेज वगैरह बनाया कि नहीं। तो वो कहती है हाँ बिल्कुल बनाया है, लेकिन अभी कुछ और करना पड़ेगा। एक तरफ हम देख रहे हैं कि महानूर और उसकी माँ पार्क में बैठे हुए होते हैं, वो कुछ ना कुछ चाल वगैरह चल रहे होते हैं, क्योंकि ईमान के यहाँ बेटा हुआ है। तो पहले उसकी बर्थडे थी तो महानूर ने वहां पर बेहोश होकर सारी बर्थडे खराब कर दी, लेकिन अब शामिर जो है वो इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा है कि महानूर ने सारा बर्थडे खराब कर दिया। लेकिन अब ईमान के बेटे का हकीका है तो शामिर ने उसे बिल्कुल ये वाज़ह तौर पर सुना दिया कि अगर तुमने अब कोई चाल चली तो मैं तुमसे बुरा पेश आऊंगा। एक तरफ हम देख रहे हैं कि अलमीर की बीवी अपनी माँ के पास गई हुई है क्योंकि उसे कैंसर है। तो अफसाब की बीवी से कॉल करके कहेंगे कि तुम शायद आ सकती हो, तो तुम्हें चाहिए तो तुम आ जाओ, क्योंकि हम शामिर और म्यान के बेटे की एक थोड़ी छोटा सा हकीका रख रहे हैं, तो तुम्हें चाहिए कि तुम इधर आ जाओ। लेकिन वो कहती है कि मेरी माँ की बिल्कुल तबीयत खराब है, वो बिल्कुल अपनी तबीयत से मुतासर नहीं हो रही क्योंकि उनसे तो चला भी नहीं जा रहा। तो आसिफ साहब की बीवी कहती है अल्लाह पाक खैर करेगा, तुम्हें चाहिए कि उन्हें इधर ले आओ, क्योंकि वो सारे खानदान और सारे लोगों को इधर देख कर थोड़ा सा तो खुश होंगे, उनकी तबीयत में कुछ ना कुछ नरमी तो आएगी। एक तरफ हम देख रहे हैं शामिर ईमान को कॉल
कॉल करता है, क्योंकि ये लड़ाई के बाद पहली कॉल होती है तो ईमान ही कॉल उठा नहीं सकती, और लेकिन थोड़ी देर बाद उठाती है तो शामिर कहता है हमने अपने बच्चे के लिए शॉपिंग के लिए जाना, तुम जल्दी आ जाना। तो ईमान कहती है मुझे लेट हो जाएगी, लेकिन ईमान कहती बाद में लेकिन मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगी, तुम परेशान मत होना, हम दोनों ही चले जाए। ड्रामा सीरियल मेरी बहुओं के न्यू एपिसोड में आप देखेंगे कि रहीम ऑफिस में बैठा हुआ होता है, ऊपर से ईमान आती है और उसे खुशखबरी सुनाती है कि तुम्हारा और मेरी बहन का रिश्ता पक्का होने वाला है, क्योंकि तुम्हारे वालिदैन और मेरे वालिदैन एक दूसरे से मुलाकात करना चाहते हैं और बात पक्की करना चाहते हैं। रहीम ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, ईमान से कहता है कि आपकी वजह से ये सब कुछ हुआ है, क्योंकि आप ना होती तो ये कभी भी ना होता। मुझे पता है कि मेरी बहन महक भी नहीं मान रही थी, लेकिन आपके वालिदैन का भी मुझे डर था कि शायद वो भी इनकार ना कर दे हमारी और तुम्हारी बहन की शादी से। तो इस तरह ईमान कहती है ऐसा कभी हो ही नहीं सकता था, क्योंकि मैं हूं ना। तो इस तरह ईमान वहां से चले जाती है और रहीम दोबारा से ऑफिस में काम करना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं आसिफ साहब की बीवी और ईमान के माँ आपस में बातें कर रहे होते हैं। वो इस टॉपिक पर बात कर रहे होते हैं कि किस तरह रहीम अच्छा लड़का है, हमें ये जिंदगी में बहुत ही एक मुतासर कुन लम्हात मिलने को नजर आ रहे हैं, क्योंकि हमने कभी ऐसे सोचा ही नहीं था कि ऐसा अच्छा लड़का हमारी बेटी के लिए आएगा। तो ये बात सुनते ही ईमान की छोटी बहन बहुत मुस्कुराना और शर्माना शुरू कर देती है। इतने में आसिफ साहब की बीवी ईमान की छोटी बहन से पूछते हैं कि तुम्हें अपने शादी के लिए कोई जोड़ा पसंद आया है कि नहीं। तो वो कहती है मैंने तो अभी किसी तक सिलेक्ट ही नहीं किया। तो इतने में ईमान की माँ कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता, ये हमारे शर्मिंदगी से बता नहीं रही है, ये शर्म कर रही है। तो यही बात होती है। तो इतने में आसिफ साहब की बीवी ईमान की माँ से पूछती है कि आपने इसके लिए कोई दहेज वगैरह बनाया कि नहीं। तो वो कहती है हाँ बिल्कुल बनाया है, लेकिन अभी कुछ और करना पड़ेगा। एक तरफ हम देख रहे हैं कि महानूर और उसकी माँ पार्क में बैठे हुए होते हैं, वो कुछ ना कुछ चाल वगैरह चल रहे होते हैं, क्योंकि ईमान के यहाँ बेटा हुआ है। तो पहले उसकी बर्थडे थी तो महानूर ने वहां पर बेहोश होकर सारी बर्थडे खराब कर दी, लेकिन अब शामिर जो है वो इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा है कि महानूर ने सारा बर्थडे खराब कर दिया। लेकिन अब ईमान के बेटे का हकीका है तो शामिर ने उसे बिल्कुल ये वाज़ह तौर पर सुना दिया कि अगर तुमने अब कोई चाल चली तो मैं तुमसे बुरा पेश आऊंगा। एक तरफ हम देख रहे हैं कि अलमीर की बीवी अपनी माँ के पास गई हुई है, क्योंकि उसे कैंसर है। तो अफसर की बीवी से कॉल करके कहेंगे कि तुम शायद आ सकती हो, तो तुम्हें चाहिए तो तुम आ जाओ, क्योंकि हम शामिर और म्यान के बेटे की एक थोड़ी छोटा सा हकीका रख रहे हैं, तो तुम्हें चाहिए कि तुम इधर आ जाओ। लेकिन वो कहती है कि मेरी माँ की बिल्कुल तबीयत खराब है, वो बिल्कुल अपनी तबीयत से मुतासर नहीं हो रही, क्योंकि उनसे तो चला भी नहीं जा रहा। तो आसिफ साहब की बीवी कहती है अल्लाह खैर करेगा, तुम्हें चाहिए कि उन्हें इधर ले आओ, क्योंकि वो सारे खानदान और सारे लोगों को इधर देख कर थोड़ा सा तो खुश होंगे, उनकी तबीयत में कुछ ना कुछ नरमी तो आएगी। एक तरफ हम देख रहे हैं शामिर ईमान को कॉल करता है, क्योंकि ये लड़ाई के बाद पहली कॉल होती है तो ईमान ही कॉल उठा नहीं सकती, और लेकिन थोड़ी बार उठाती है तो शामिर कहता है हमने अपने बच्चे के लिए शॉपिंग के लिए जाना, तुम जल्दी आ जाना। तो ईमान कहती है मुझे लेट हो जाएगी, लेकिन ईमान कहती बाद में लेकिन मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगी, तुम परेशान मत होना, हम दोनों ही चले जाए। ड्रामा सीरियल मेरी बहुओं के न्यू एपिसोड में आप देखेंगे कि रहीम ऑफिस में बैठा हुआ होता है, ऊपर से ईमान आती है और उसे खुशखबरी सुनाती है कि तुम्हारा और मेरी बहन का रिश्ता पक्का होने वाला है, क्योंकि तुम्हारे वालिदैन और मेरे वालिदैन एक दूसरे से मुलाकात करना चाहते हैं और बात पक्की करना चाहते हैं। रहीम ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, ईमान से कहता है कि आपकी वजह से ये सब कुछ हुआ है, क्योंकि आप ना होती तो ये कभी भी ना होता। मुझे पता है कि मेरी बहन महक भी नहीं मान रही थी, लेकिन आपके वालिदैन का भी मुझे डर था कि शायद वो भी इनकार ना कर दे हमारी और तुम्हारी बहन की शादी से। तो इस तरह ईमान कहती है ऐसा कभी हो ही नहीं सकता था, क्योंकि मैं हूं ना। तो इस तरह ईमान वहां से चले जाती है और रहीम दोबारा से ऑफिस में काम करना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं आसिफ साहब की बीवी और ईमान के माँ आपस में बातें कर रहे होते हैं, वो इस टॉपिक पर बात कर रहे होते हैं कि किस तरह रहीम अच्छा लड़का है, हमें ये जिंदगी में बहुत ही एक मुतासर कुन लम्हात मिलने को नजर आ रहे हैं, क्योंकि हमने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि ऐसा अच्छा लड़का हमारी बेटी के लिए आएगा। तो यह बात सुनते ही ईमान की छोटी बहन बहुत मुस्कुराना और शर्माना शुरू कर देती है। इतने में आसिफ साहब की बीवी ईमान की छोटी बहन से पूछते हैं कि तुम्हें अपने शादी के लिए कोई जोड़ा पसंद आया है कि नहीं।
तो वो कहती है मैंने तो अभी तक सिलेक्ट ही नहीं किया। तो इतने में ईमान की माँ कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता, ये हमारे शर्मिंदगी से बता नहीं रही है, ये शर्म कर रही है। तो यही बात होती है। तो इतने में आसिफ साहब की बीवी ईमान की माँ से पूछती है कि आपने इसके लिए कोई दहेज वगैरह बनाया कि नहीं। तो वो कहती है हाँ बिल्कुल बनाया है, लेकिन अभी कुछ और करना पड़ेगा। एक तरफ हम देख रहे हैं कि महानूर और सीमा पार्क में बैठे हुए होते हैं, वो कुछ ना कुछ चाल वगैरह चल रहे होते हैं, क्योंकि ईमान के यहाँ बेटा हुआ है। तो पहले उसकी बर्थडे थी, तो महानूर ने वहां पर बेहोश होकर सारी बर्थडे खराब कर दी। लेकिन अब शामिर जो है वो इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा है कि महानूर ने सारा बर्थडे खराब कर दिया। लेकिन अब मान के बेटे का हकीका है, तो शामिर ने उसे बिल्कुल ये वाज़ेह तौर पर सुना दिया कि अगर तुमने अब कोई चाल चली तो मैं तुमसे बुरा पेश आऊंगा। एक तरफ हम देख रहे हैं कि अलमीर की बीवी अपनी माँ के पास गई हुई है, क्योंकि उसे कैंसर है। तो अफसर साहब की बीवी से कॉल करके कहेंगे कि तुम शायद आ सकती हो, तो तुम्हें चाहिए तो तुम आ जाओ, क्योंकि हम शामिर और म्यान के बेटे की एक थोड़ी छोटा सा हकीका रख रहे हैं, तो तुम्हें चाहिए कि तुम इधर आ जाओ। लेकिन वो कहती है कि मेरी माँ की बिल्कुल तबीयत खराब है, वो बिल्कुल अपनी तबीयत से मुतासर नहीं हो रही, क्योंकि उनसे तो चला भी नहीं जा रहा। तो आसिफ साहब की बीवी कहती है अल्लाह पाक खैर करेगा, तुम्हें चाहिए कि उन्हें इधर ले आओ, क्योंकि वो सारे खानदान और सारे लोगों को इधर देख कर थोड़ा सा तो खुश होंगे, उनकी तबीयत में कुछ ना कुछ नरमी तो आएगी। एक तरफ हम देख रहे हैं शामिर ईमान को कॉल करता है, क्योंकि ये लड़ाई के बाद पहली कॉल होती है तो ईमान ही कॉल उठा नहीं सकती, और लेकिन थोड़ी बार उठाती है। तो शामिर कहता है हमने अपने बच्चे के लिए शॉपिंग के लिए जाना, तुम जल्दी आ जाना। तो ईमान कहती है मुझे लेट हो जाएगी, लेकिन ईमान कहती बाद में लेकिन मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगी, तुम परेशान मत होना, हम दोनों ही चले जाए। ड्रामा सीरियल मेरी बहुओं के न्यू एपिसोड में आप देखेंगे कि रहीम ऑफिस में बैठा हुआ होता है, ऊपर से ईमान आती है और उसे खुशखबरी सुनाती है कि तुम्हारा और मेरी बहन का रिश्ता पक्का होने वाला है, क्योंकि तुम्हारे वालिदैन और मेरे वालिदैन एक दूसरे से मुलाकात करना चाहते हैं और बात पक्की करना चाहते हैं। रहीम ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, ईमान से कहता है कि आपकी वजह से ये सब कुछ हुआ है, क्योंकि आप ना होती तो ये कभी भी ना होता। मुझे पता है कि मेरी बहन महक भी नहीं मान रही थी, लेकिन आपके वालिदैन का भी मुझे डर था कि शायद वो भी इनकार ना कर दे हमारी और तुम्हारी बहन की शादी से। तो इस तरह ईमान कहती है ऐसा कभी हो ही नहीं सकता था, क्योंकि मैं हूं ना। तो इस तरह ईमान वहां से चले जाती है और रहीम दोबारा से ऑफिस में काम करना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं आसिफ साहब की बीवी और ईमान के माँ आपस में बातें कर रहे होते हैं, वो इस टॉपिक पर बात कर रहे होते हैं कि किस तरह रहीम अच्छा लड़का है, हमें ये जिंदगी में बहुत ही एक मुतासर कुन लम्हात मिलने को नजर आ रहे हैं, क्योंकि हमने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि ऐसा अच्छा लड़का हमारी बेटी के लिए आएगा। तो यह बात सुनते ही ईमान की छोटी बहन बहुत मुस्कुराना और शर्माना शुरू कर देती है। इतने में आसिफ साहब की बीवी ईमान की छोटी बहन से पूछते हैं कि तुम्हें अपने शादी के लिए कोई जोड़ा पसंद आया है कि नहीं। तो वो कहती है मैंने तो अभी तक सिलेक्ट ही नहीं किया। तो इतने में ईमान की माँ कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता, ये हमारे शर्मिंदगी से बता नहीं रही है, ये शर्म कर रही है। तो यही बात होती है। तो इतने में आसिफ साहब की बीवी ईमान की माँ से पूछती है कि आपने इसके लिए कोई दहेज वगैरह बनाया कि नहीं। तो वो कहती है हाँ बिल्कुल बनाया है, लेकिन अभी कुछ और करना पड़ेगा। एक तरफ हम देख रहे हैं कि महानूर और सीमा पार्क में बैठे हुए होते हैं, वो कुछ ना कुछ चाल वगैरह चल रहे होते हैं, क्योंकि ईमान के यहाँ बेटा हुआ है। तो पहले उसकी बर्थडे थी, तो महानूर ने वहां पर बेहोश होकर सारी बर्थडे खराब कर दी। लेकिन अब शामिर जो है वो इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा है कि महानूर ने सारा बर्थडे खराब कर दिया। लेकिन अब मान के बेटे का हकीका है, तो शामिर ने उसे बिल्कुल ये वाज़ेह तौर पर सुना दिया कि अगर तुमने अब कोई चाल चली तो मैं तुमसे बुरा पेश आऊंगा। एक तरफ हम देख रहे हैं कि अलमीर की बीवी अपनी माँ के पास गई हुई है, क्योंकि उसे कैंसर है। तो अफसर साहब की बीवी से कॉल करके कहेंगे कि तुम शायद आ सकती हो, तो तुम्हें चाहिए तो तुम आ जाओ, क्योंकि हम शामिर और म्यान के